وہ میری جو وضاحت ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت کرنا مقصود نہیں ہے یا ان کی تحریک کی حمایت کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ اپنے بزرگان دین قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے ارشادات و تصریحات کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ ہمارا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو. تو یہ سمجھیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت جل شانہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ ہمارے عقیدے میں ہمارے مسلک میں اللہ کے علاوہ کسی کو بالاتفاق کرنا حرام ہے. اس کو ہم ہرگز جائز نہیں سمجھتے. ہمارے امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ کہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے مسئلے پر مستقل آپ نے کتاب لے کے درجنوں دلائل اس پر پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بزرگان دین کے مزارات کا طواف کرنا یہ بھی منع ہے, یہ بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. اور باقی رہا بزرگوں کے مزارات کو ان کی قبور کو بوسہ دینا, تو اس میں ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ دینے سے بچا جائے. البتہ بوسہ دینا حرام یا کفر یا شرک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح سجدہ حرام ہے اسی طرح تعظیم کی خاطر اور تعظیم و توقیر کی خاطر کسی کے سامنے حد رکوع تک جھکنا تعظیم کی خاطر, جس طرح کہ پچھلے سلاطین اور بادشاہوں کے درباروں میں ان کے درباری ان کے سامنے آگے جھکا کرتے تھے حد رکوع تک, یہ جھکنا بھی حرام ہے. اگر غرض تعظیم ہو اور اگر غرض کوئی اور دوسرا مقصد ہو تو پھر جھکنا حرام نہیں ہے. وہ آگے انشاءاللہ کی تفصیل بیان کروں گا کہ وہ مختلف دیگر اغراض, مثال کے طور اپنے استاذ اپنے والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے, ان کو جوتیاں پکڑانے کے لیے, ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے جھکتا ہے, تو وہ حد رکوع تک جھکا تو گیا, لیکن چونکہ یہاں بغرض تعظیم نہیں جھکا بلکہ جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے جھکا ہے, تو یہ جھکنا اس جھکنے کی طرح حرام نہیں ہوگا جو حرمت والا جھکنا ہے. وہ ہے کہ بطور تعظیم کے کسی کے سامنے, جس طرح کہ پرانے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کرتے تھے, اس طرح جھکنا کیا ہے, حرام ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ مطلقاً جھکنا ہی حرام ہے کسی کے سامنے, تو اس سے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات طیبات پہ اعتراض آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو, حضور کے پاؤں کو چومتے تھے. اور اس کا بیان سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5223 اور 5225 میں یہ احادیث موجود ہیں. اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2723, یہ ساری تمام احادیث اس بات میں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے صحابہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے, حضور کے پاؤں بھی چومتے. تو ظاہر ہے کہ پاؤں چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا نا. جب صحابہ حضور کے پاؤں چومتے تھے تو یقیناً وہ پاؤں چومنے کے لیے جھکتے تھے. تو اب وہ جھکنا حد رکوع تک ہو یا اس سے زیادہ ہو, وہ چونکہ پاؤں چومنے کے لیے تھا اس لیے وہ جھکنا حرام نہیں ہے, وہ جھکنا جائز ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. اس کی ایک مثال میں صحیح بخاری شریف سے حدیث پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1241 ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال با کمال ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے حضور کی بارگاہ اقدس میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ حضور تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے وصال کے بعد جب سرکار کے سامنے آئے, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے چہرہ مبارکہ سے کپڑا ہٹایا, ثم اقب علیہ, پھر حضور پر وہ جھک گئے, فقبلہ ثم بقا, اور جھک کے نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو ابو بکر صدیق نے حضور کے پیشانی کو بوسہ دیا جھک کر. تو اب یہ جھکنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے کیونکہ بوسہ دینے کے لیے جھکے تھے. تو اگر کوئی بندہ بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے تو وہ جھکنا حرام نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ اپنے صحابی کے وصال کے بعد جب ان کے پاس گئے, ان کی چارپائی کے پاس گئے, تو مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 3 صفحہ 596 پر اور سنن الکبری بیہقی کی جلد 3 صفحہ 407 پر یہ حدیث موجود ہے. مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 6793
75 है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं फ़अक़ब्बा अलैहि फ़क़ब्बलहु सुम्मा बका, नबी करीम अलैहि सलाम हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की जो नाश थी उसके पास गए, हुजूर झुके और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने झुक के हज़रत उस्मान को बोसा दिया और फिर नबी करीम अलैहि सलाम ने आंसू बहाए, हुजूर के आंसू अपनी मुबारक आंखों से बह गए, हुजूर रो पड़े। तो यहाँ झुकना पाया गया, तो खुद नबी करीम अलैहि सलाम और सहाबा किराम से झुकना पाया गया, लेकिन ये झुकना ताज़ीम की गर्ज से नहीं था, बल्कि झुकना किस गर्ज से, चूमने के लिए और बोसा देने के लिए था। और बोसा के हवाले से भी अहादीस से बिल्कुल ये बात बिल्कुल बैन और वाज़ेह है कि अगर कोई बंदा फ़र्त मोहब्बत में किसी बुजुर्ग की कब्र को या किसी बुजुर्ग के मज़ार को बोसा देता है तो वो बोसा देना भी हराम और शिरक और कुफ्र नहीं है। फौरन कुफ्र और शिरक का फतवा दाग देना ये भी किसी सही और अकीदा मुसलमान का काम नहीं है, बल्कि अगर हम अहादीस तय्यबात को देखते हैं तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से एक जलील क़द्र सहाबी मेज़बान रसूल हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की जिल्द 6 के सफ़ा नंबर 587 पे हदीस नंबर 23,074 बयान की कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हुजूर की कब्र पुर अनवार पे आए। अक़बल मरवान यौमन फवजद रजुलन वादिअन वजहु अलल क़ब्र, मरवान आया, उसने देखा कि एक शख्स वो है कि रजुलन वादिअन वजहु अलल क़ब्र, कि एक शख्स ने अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार पे रखा है और वो बैठा हुआ है। और मरवान ने आके कहा अतदरी मा तसना, ए अपने चेहरे को रोजा रसूल पे कब्र रसूल पे रखने वाले तू जानता है तू क्या कर रहा है? फ़अक़बला अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अयूब, तो जब उन्होंने मुड़ के देखा चेहरा उठा के तो मरवान ने देखा कि वो कोई आम शख्स नहीं थे, वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी करीम अलैहिस्सलाम की तुरबत पुर अनवार कब्र पुर अनवार पे चेहरा रखना हदीस से साबित हुआ, और यह हदीस कम से कम हसन दर्जे की है। इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको सही और हसन दर्जे तक तस्लीम किया है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में से हज़रत सैयदना बिलाल बशीर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से इमाम समूदी ने तारीख़ इब्न असाकिर से एक रिवायत नकल की है सनद जय्यद के साथ कि सैयदना बिलाल जब मुल्क शाम चले गए तो उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि बिलाल ये कैसी जफा है कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए नहीं आते। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला सुबह उन्होंने रखते सफ़र बांधा और मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में मदीना शरीफ पहुँचे, हदीस में आता है कि फ़अता क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जअला यबकी इंदहु व युमर्रिगु वजहु अलैहि, हुजूर की कब्र पुर अनवार पे आए, रोते हुए हिचकी बंधी हुई थी और अपने चेहरे को नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पे उन्होंने रख दिया और अपने चेहरे को हुजूर की कब्र से मस करना शुरू कर दिया और लौट पोट होना शुरू कर दिया। इमाम समूदी ने इस बात को वफ़ाउल वफ़ा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा 182 पे बयान किया सनद जय्यद के साथ। इस रिवायत की सनद क्या है? जय्यद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार को चूम लेते थे, अपना चेहरा भी हुजूर की कब्र पे रखते थे। तो अगर किसी कब्र को चूमना शिरक है तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र को भी चूमना शिरक होगा, और सहाबा नाउज़ बिल्लाह शिरक कर नहीं सकते। और फिर हमारे बुजुर्गान दीन से यह तसलसल के साथ सिलसिला चला आता है कि नेक लोग बुजुर्गान दीन अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं उनकी जो है वो हाथों को भी बुजुर्गान दीन को चूमा जाता रहा है और उनके पाँव को भी चूमा जाता रहा है। एक मैं बड़ा ज़बरदस्त हवाला आपके सामने रखता हूँ। इमाम इब्न नुख्ता ने अपनी किताब अत-तक़यीद लिमारफ़त रुवात सुनन वल मसानीद, ये किताब है बैरूत से शाये हुई है। इस किताब के सफ़ा 33 पर इमाम इब्न नुख्ता ने अपनी सनद के साथ इस रवायत को बयान किया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के पास गए तो इमाम बुखारी जो कि उनके उस्ताद से, तो उनके पास जाके गुजारिश करते हैं कि या उस्ताज़ीन व या सय्यद अल मुहद्दिसीन,
व तबीब अल हदीस फी इललही, ए उस्तादों के उस्ताद और ए मुहद्दिसीन के सरदार और ए हदीस की इल्लतों के तबीब, मुझे इजाजत दें, दानी हत्ता उकब्बिल रिजलै का, मुझे इजाजत दें, मुझे मौका दें, मैं आपके पाँव को चूमूं, मैं आपके। तो जब इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के पाँव को चूमा है तो मुझे बताया कि पाँव को चूमने के लिए झुके कि नहीं? पाँव को चूमने के लिए लाजमी झुकना पड़ेगा। अभी कल एक बंदे का बयान सुन रहा था, अहले सुन्नत के सख्त मुखालिफ थे, तो वो कहने लगे कि ठीक है पाँव को चूमना तो चूमे, लेकिन पाँव को चूमने के लिए झुकना नहीं चाहिए। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ी मुद्दा खेज बात और क्या होगी कि जिसके पाँव चूमेंगे क्या वो पाँव उठा के मुंह के करीब करेगा? अगर पाँव चूमना जायज है, सहाबा ने नबी करीम अलैहि सलाम के पाँव चूमे और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी के पाँव चूमे, तो मुझे होता है कि इमाम बुखारी ने अपना पैर उठा के इमाम मुस्लिम के मुंह तक किया होगा? नहीं, बल्कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने झुक के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के पाँव को चूमा है। चूंकि यहाँ झुकने से गर्ज और नीयत जो है वो ताजीम की नहीं थी, बल्कि पाँव चूमना मकसूद था, तो ये शिरक और हराम और वो जो हुर्मत वाली सूरत है वो सूरत पैदा नहीं होती। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी बुजुर्ग के मज़ार को या ये है कि किसी बुजुर्ग की कब्र को चूमता है, तो वो चूमना और झुकना जो है वो चूमने के लिए चूंकि झुका गया है, लिहाजा वो झुकना हराम नहीं होगा। तो बाद लोगों ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के फतवे को भी मिस यूज किया और उसका एक गलत मतलब बयान किया कि देखे जी इमाम हमजा बरेलवी साहब ने भी लिखा है अपनी किताबों में कि हद्दे रुकू तक झुकना हराम है। तो जब झुकना हराम है तो इससे साबित हुआ कि किसी बुजुर्ग के मज़ार को चूमने के लिए झुकना हराम है। तो भाई वो झुकना सिर्फ फकत ताजीम के लिए जो है वो हराम है, अगर चूमने के लिए झुका जाए तो वो झुकना हराम नहीं है। तो बाकी हमारे अकाबरीन का यही मौक़िफ़ है कि अवाम को के लिए यही एहतियात है कि वो मज़ारात को चूमने से और कब्रों बुजुर्गों की कब्रों को चूमने से एहतियात करें, बचें। लेकिन अगर कोई बंदा चूमता है तो चूमना कुफर या शिरक या हराम नहीं है। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपसे पूछा गया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से कि आया कोई बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर को मस करता है, हाथ लगाता है और उसको चूमता है तबर्रुक के लिए, तो ये चूमना जायज़ है? तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ला बास बिही, चूमना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इस बात को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल इल्ल व मारिफतुर रिजाल की जिल्द 2 सफ़ा 22 पर और रकम नंबर इसका 250 है उस पर बयान किया है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी मौजूद है कि कोई बंदा तबर्रुक के लिए नबी करीम अलैहि सल्लम के मिंबर को चूमता है या हुजूर के मिंबर को मस करता है तो ये हराम और गुनाह नहीं है, बल्कि क्या है, जायज़ है। और इस पर मैं एक रवायत भी पेश कर दूं, ये किताब है इमाम इब्न अबी हातिम की किताब है किताबुस सिक़ात इब्न हिब्बान, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 पर इब्न अबी ज़ैब फरमाते हैं कि मैंने सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला वादा यदहु अला मक़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, अपने हाथ को हुजूर के मिंबर के उस मकाम पे रखते जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठा करते थे। सुम्मा वादा अला वजही, फिर अपने हाथों को अपने चेहरे पर बांध लिया करते थे, यानी हुजूर के मिंबर को मस करके अपने हाथों को चेहरे पर मल लेते थे। ये सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी।